अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक। आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल फरी रिएक्शन। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं कि सब ठीक होंगे, खैर आफियत से होंगे जी। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी ठीक है। अल्लाह ताला आपको हमें अपने ज़ुबान में रखे, आमीन सुम्मा आमीन। पूरी सी दुआ के साथ आज की वीडियो का आगाज़ करते हैं। और जो हमारे चैनल पर न्यू है उनसे रिक्वेस्ट है हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद व बारिक वसल्लम अलैहि औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। थैंक यू सो मच जी, बहुत शुक्रिया कमेंट करने के लिए। और जिन्होंने मुझे कमेंट किया कि फिज़ान वीर की जाके वीडियो देखिए, थैंक यू सो मच जी, शुक्रिया। उससे पहले मुझे नोटिफिकेशन आ गया था, मैंने उनकी वीडियो देखी है। दुआएं खैर करते हैं, फिर मैं आगे उनकी कुछ बातें भी आपको बताऊँगी और डिस्कस भी करेंगे। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद व बारिक वसल्लम अल्लाह ताला तमाम मुसलमानों को अपनी हिफ्ज़ व मान में रखे, बुरी शोरतों से बचाए, सुख सुकून वाली ज़िंदगी दे, इज़्ज़त वाली ज़िंदगी दे और ज़िल्लत वाली ज़िंदगी से बचा के रखे। तो यहाँ पहले मैं आपको कुछ चीज़ें दिखाती हूँ, फिर उन बातों पे हम डिस्कस करेंगे। ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਸਮਝ ਆ ਜਾਊਗੀ। ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਭੈਣਾਂ ਬਈ ਚਾਹੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬਰ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਮੈਂਟ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਗਲਤ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਫੇਰ ਮੇਰਾ ਜੀ ਕਰੀ ਜੋ। ਤੇ ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੀ ਸੱਚਾਈ ਆ, ਸੱਚ ਵਿੱਚ ਐਸੇ ਬੰਦੇ ਬੜੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੇਮ ਹੀ ਪਲਟ ਕੇ ਰੱਖ ਛੱਡੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੇਮ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਹਸ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਕਿਸੇ ਦਾ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਕਿ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਮੈਂ ਕਿ ਪਾਣੀ 'ਚ ਐਵੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ। ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਸਦੀਕ ਦਾ ਅੱਜ ਤੱਕ? ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਅੱਛਾ ਗੁਜ਼ਾਰਿਆ, ਚੰਗਾ ਗੁਜ਼ਾਰਿਆ, ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਸੇ ਸੈਰ ਗੁਜ਼ਾਰਿਆ। ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਕਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਜੋ ਵੀ ਮਸਲਾ ਮਸੈਲਾ ਹੈਗਾ, ਵੀਡੀਓ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੀਆਂ ਸਾਹਮਣੇ, ਵੈਸਾਂ ਵੀ ਲੱਗ ਗਈਆਂ, ਵੀਡੀਓ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣਾਓ। ਲੇਕਿਨ ਜੋ ਵੀ ਆ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਕਹਿ ਤੇ ਘਵਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਆ, ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਟੈਗ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਉਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਫੇਲ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਫਾਈ ਦੇਣੀ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਦੇਣੀ। ਇਹ ਦੁਨੀਆ 'ਤੇ ਲੰਦਾ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਉਹ ਖੁਦਾ ਦੇ, ਰੱਬ ਮਰ ਜਾਣਾ ਇੱਕ ਦਿਨ। ਡਰੋ ਰੱਬ ਦੀ ਜ਼ਾਤ ਕੋਲ, ਡਰੋ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਵੀ ਕਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਟੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਆ। ਪਹਿਲੇ ਇਕੱਲਾ ਸਦੀਕ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ। ਮਜਬੂਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ। ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਪਾਲਣੇ ਛੋਟੇ ਵਾਧਾ ਘਾਟਾ, ਨਿਜ਼ਾਮ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਘਾਟੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਮੁਸ਼ਕਲ ਆ। ਦੁੱਖ ਉਹ ਬੰਦਾ ਜਾਣੇ ਜਿਹਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਹੋਵੇ। ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਬਣ ਆ, ਬਾਹਰੋਂ ਭੈਣ ਭਾਈਆਂ ਨੇ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਹਿੱਲਿਆ, ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਆਇਆ। ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਉਹ ਘਰ ਆ ਗਏ, ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਮੀ ਆਉਂਦਿਆਂ ਨੇ ਵੀਡੀਓ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਆਹ ਮਰ ਗਏ, ਅਸੀਂ ਇੱਦਾਂ ਹੋ ਗਿਆ, ਉੱਥੇ ਇੰਝ ਹੈਗੇ, ਵੈਣ ਪੈ ਗਏ। ਲੇਕਿਨ ਇੱਥੇ ਗਿੱਠ ਲੰਬੀਆਂ ਜ਼ਬਾਨਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ, ਵੀਡੀਓ ਬਣ ਰਹੀਆਂ, ਸਾਰਾ ਕੁਛ। ਲੇਕਿਨ ਦੱਸਿਆ ਕਰੋ ਭੈਣਾਂ ਭਰਾਵਾਂ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬਾਕੀ ਝੂਠ ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਉਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਰੋ। ਉੱਧਰੋਂ ਸਾਡੀ ਭਤੀਜੀਆਂ, ਭਾਣਜੀਆਂ, ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਆ। ਉੱਧਰੋਂ ਹੁਣ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਯਾਸਮੀਨ ਨੇ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਈ, ਵਾਧਾ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਮੈਂ, ਉਹਨੇ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਈ, ਉਹਨੇ ਜੋ ਕਿਹਾ ਉਹਦਾ ਦੀ ਇਹੀ ਮਨੀਰ ਬਰੋ ਸਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਸੀ। ਭਾਈ ਸ਼ਫੀਕ ਦੇ ਗੱਲ ਪਿਆ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਗਿਆ ਨੇ, ਘਰੋਂ ਬੰਦ ਕਰਤਾ, ਸਾਡਾ ਨਹੀਂ ਆਣ ਜਾਣ ਸੀ। ਉਸ ਟਾਈਮ ਸਾਰੇ ਇੱਕੋ ਭਾਂਡੇ 'ਚ ਖਾਂਦੇ ਸੀ ਬੈਠ ਕੇ। ਉਦੋਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਭਾਓ ਇਹਨੂੰ ਕੋਲ ਜਾ, ਉਹ ਕੰਮ ਮਸਲਾ ਮੁੱਕ ਗਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਤੁਹਾਡਾ ਹੱਕ ਬਣੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ। ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਬਾਹਰੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਆਹ ਕੰਮ ਇੱਦਾਂ ਹੋ ਗਿਆ, ਆਹ ਕੰਮ ਇੱਦਾਂ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ, ਉਹ ਬੜੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ, ਕੋਈ ਵਾਧਾ ਘਾਟਾ, ਕੋਈ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ 'ਚ ਬੈਠ ਕੇ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ। ਅਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਇੱਜ਼ਤਾਂ ਪੱਟੀ ਜੋ ਆ ਦੇਖੋ ਨਾ, ਝੱਗਾ ਤਾਂ ਚੱਕਾਂਗੇ ਅਤੇ ਖੇਡਾਂ ਆਪਣੇ ਨੰਗਾ ਹੋਣਾ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਫਿਰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਬਹੁਤ ਰੁਪਈਏ ਕਮਾਉਣੇ 'ਚ ਸੁਖਤਾਂ ਨੂੰ ਅੱਲਾ ਮਾਲਕ ਬਹੁਤ ਠੀਕ ਦੇਵੇ। ਲੇਕਿਨ ਕਿਸੇ ਧੀ ਭੈਣ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਪੱਟ ਕੇ, ਅਤੇ ਜਾਂ ਜਿਹਦੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਜ਼ਤ ਪੱਟੀ ਆ, ਜਿਹਦਾ ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਬਰਬਾਦ ਹੋਇਆ ਵਾ, ਆ ਹੋਰ 4 ਦਿਨ 10 ਦਿਨ ਮਹੀਨਾ ਲਾ ਲਓ, ਵਿਊਜ਼ ਆ ਰਹੇ ਆ, ਡਿਸਕਸ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਵੀਡੀਓ ਕਰੋ, ਮਰ ਜਾਣਾ, ਇੱਥੇ ਛੱਡ ਜਾਣੀ ਹਰ ਜਾ। ਪੈਸਾ ਕੀ ਕਬਰ 'ਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਲੈ ਜਾਣਾ ਤੁਸੀਂ? ਪੈਸਾ ਕਬਰ 'ਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਲੈ ਜਾਣਾ ਤੁਸੀਂ? ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਮ ਕਿਸੇ ਦਾ ਲੈ ਕੇ ਪੈਸੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਦੱਸਣ ਨੌਵਾਂ ਦੀ ਕਰਕੇ ਲਾਓ ਨਾ। ਉਲਟਾ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਕਮੈਂਟ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਬਾਹਰੋਂ ਵੈਸਾਂ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਹੋ ਗਲਤ। ਵੈਸੇ ਫਿਰ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਹੀ ਹੈ ਨਾ। ਲੇਕਿਨ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਬੰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਛ ਗੈਰਤ ਦੀ ਰੱਤੀ ਜਾਂ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਮਾਨ ਦੀ ਰੱਤੀ ਹੋਵੇ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਨੌਬਤ ਜਾਂਦੀ ਕਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਜੀ ਇੱਦਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉੱਦਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਸਭ ਦਿਖਾਵਾ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਵਾਸਤੇ। ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਮਾਰੀ ਕੇ ਇੱਕ ਹੋਟਲ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਖਾਣੇ ਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਰਬਾਦ ਹੋਣੀ ਤੇ ਪਈ। ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਉਣੋਂ ਅਸੀਂ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ।
ਲੇਕਿਨ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਮਾਸੂਮ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਦੋ ਤੇ ਲਾਤੀਆਂ ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਵਿਊਜ਼ਾਂ ਦੀ ਖਾਤਰ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹੀ 4 ਦਿਨ ਆਪਣੇ ਵਿਊਜ਼ ਬੰਦ ਕਰਦੇ, ਵੀਡੀਓ ਬੰਦ ਕਰਦੇ, ਜਿੰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਭਜਦੇ ਅਸੀਂ ਇੱਧਰ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਉੱਧਰ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਇੱਦਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਇੱਦਾਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਜੇ ਉਹੀ ਤੁਸੀਂ ਭੈਣ ਭਰਾ ਇਕੱਠੇ ਜਿਵੇਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਤੁਰੋ ਤਾਂ ਸਹੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੋ ਤਾਂ ਸਹੀ। ਬਾਅਦ ਥੱਕ ਕੇ ਅਸੀਂ ਬਾਈ ਦੂਰ ਗਏ ਅਸੀਂ ਅੱਜ, ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸੇ ਟਾਈਮ ਉੱਥੇ ਹੀ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਇੱਕ ਇਸ਼ੂ ਬਣਾਇਆ, ਜਿਵੇਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਓਏ ਹੋਏ ਤੇ ਇੱਦਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਉੱਥੇ। ਲੇਕਿਨ ਦੇਖੋ ਨਾ, ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਤਕਰੀਬਨ ਮਹੀਨਾ ਹੋ ਚੱਲਿਆ, ਕੋਈ ਸਾਡਾ ਭੈਣ ਭਾਈ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਵਾ ਸਾਡੀ ਫੈਮਿਲੀ ਮੈਂਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਅੱਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਪੰਚਾਇਤ ਹੋਈ ਉਸੇ ਦਿਨ ਵੀ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜਿੱਥੋਂ ਭਰਾ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ, ਅੱਗੋਂ ਮਾਂ ਪਿਓ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ, ਮਾਂ ਪਿਓ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਗੋਂ ਕੋਈ ਡਿਸਕਸ ਹੋਈ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਕਜ਼ਨ ਕੋਲ ਆ ਗਈ, ਕਜ਼ਨ ਕੋਲੋਂ ਗਾਂ ਅੱਗੇ ਉਹ ਕੋਈ ਛੋਟੀ ਬੱਚੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਰਸਤਾ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਿੱਦਾਂ, ਉਹ ਅੱਲਾ ਬਿਹਤਰ ਜਾਣਦਾ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਲਿਆ ਕੇ ਪੁੱਛਿਆ, ਔਰ ਕੱਲ੍ਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ 2 ਬੰਦੇ ਗਏ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋਇਆ, ਉਹਨੇ ਦੱਸਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦੱਸਿਆ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਈ, ਜਿਸ तरह। तो जी ये फिजान मीर की बातें सारी सुन लें। देखिए हम लोग किसी को पर्सनल तौर पे नहीं जानते, ना शाद वीर, ना अब्दुल गफ्फार, ना किसी को भी नहीं इनके गांव में हम लोग जानते। जस्ट एक वीडियो की बात होती, वीडियो को देखते हैं, और ये मेरी वीडियो देख के बड़े लोगों को बुरा भी लगेगा कि लो जी आंटी कभी इधर की बात कभी उधर की बात। देखें हम कोई रिश्तेदार नहीं है, आप लोग भी समझ चुके, हम भी समझ चुके, और ये बंदा जो बीच में बैठ के बातें कर रहा, पैसे की थर्ड पार्टी हमें कहा जाता है, हमारे लिए भी वो थर्ड पार्टी हैं। और जो उसने मतलब कि उज़मा और मुनीर की बात भी जो मतलब कि छुपे लफ्ज़ों में बात की है, आपको भी समझ आ जाएगी, मुझे भी आ जाएगी, हमें तो आई हुई है। बाकी आगे उस चीज़ को समेटा नहीं गया, यही बात ये बंदा कर रहा है कि तुम उस चीज़ को। वैसे इनकी भी गलती, तुम लोगों ने ये काम होने क्यों दिया कि अगर समेटा नहीं गया तो। मेरी बात सुने ना, अब वो बंदा इधर ये बता रहा है कि पैसे के साथ साथ जो था ना मुनीर, वो हमारे साथ नहीं मिलता था, और पता नहीं किस भाई को उसने मारा भी है। तो उस वक्त भी इन्हें हर चीज़ का पता था। देखे कोई अगर बदफेली करता है ना या गलत सोच रखता है ना, उसमें उसके भाई बहन भाइयों को जो हम ब्लेम नहीं कर सकते। हाँ, ये जब स्पोर्ट बने हैं उस चीज़ को हम गलत कहते हैं। तो बाकी ये 5-6 लाख वाली बात उसने खोल के बता दिया है, ये सारा व्यूज़ का चक्कर था। हक लाल कमाओ ते खाओ, ਤੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਪੈਸਾ ਮੰਗ ਰਿਹਾ ਜੇ, ਕੌਣ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪੈਸਾ ਮੰਗ ਰਿਹਾ? मतलब कि शो ये करवाया जा रहा था कि ये जो सदीक भाई साहब है, ये और मुनीर ब्रो, ये सारे 5-6 लाख की डिमांड कर रहे थे। अदरवाइज वकीलों ने तो अपनी फीस लेनी होती है। उन्हें क्या लगे जी एक औरत अपनी मर्जी से किसी बंदे के साथ गई है या नहीं गई या जो भी है, उन्होंने एक केस लड़ना होता है, उसकी उन्होंने फीस लेनी होती है। वो क्या जी, वो 5-5, 7-7 लाख एक बंदी आना नहीं चाह रही, खुद मिलके उसको मिली भगत से जलीलो ख्वार किया गया। ये कुछ लोग कह रहे हैं जी ये काम बिल्कुल नहीं हुआ, ये फेक ड्रामा है। मुझे जो इन लोगों की बातों से पता चला ये हुआ ज़रूर है, लेकिन इसको फैलाया इसलिए गया है लोगों से मदद लेने के लिए। अब देखें ना, कोई आपकी मदद क्यों करे। अब बात हो रही थी आपका, अल्लाह माफ़ करे, मैं 100 बार कहती हूँ, कोई नुकसान हुआ, कोई चोरी, कोई बीमार, कोई घर में आग लग जाना, घर टूट जाना, गिर जाना, कोई इस तरह के नुकसानात हो तो आपके कोई पूरे करे। अब आप मियाँ बीवी की अंडरस्टैंडिंग ख़त्म हो गई, एक औरत बच्चों को भी नहीं देख रही, उनका अपना कोई रिश्तेदार है वो उसको पसंद करके चली गई है, तो बाद में आप उसको वापस लाने के लिए जतन लगा रहे और वहाँ पैसा खर्च कर रहे और वो आपसे उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। वही तो मैंने कहा, इन लोगों को केस करने के बजाय वो इतने धड़ल्ले से इतने कानूनदान हो गए, वो ऊपर से इनसे 5-5, 6-6 लाख रुपए की डिमांड करना शुरू हो गए। यही तो हमें समझ आ रही थी कि दाल काली नहीं, मतलब दाल में कुछ काला नहीं, दाल पूरी काली है। देखे जी, हर बंदे की अपनी मर्जी है। हमें ये चीज़ें लगी बुरी, हम इस चीज़ पे आवाज़ उठा रहे हैं। जिनको ये चीज़ें अच्छी लग रही हैं वो इस चीज़ के दिफा में खड़े हो गए। हो सकता है उनमें भी ऐसी कोई चीज़ें हों, उनके घर की ख़ानदान की औरतें जो है, मतलब जिस तरह कुछ लोग वीडियोज़ बना रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, हर इंसान जो कोई गुफ्तगू कर रहा था या बात कर रहा था वो अपनी तरबियत अपना सब कुछ दिखा रहा होता है कि उसके घर में क्या चलता है। अगर ऐसी औरत जो बच्चों को छोड़ के गई है, शोहर को रुसवा कर गई है, चले शोहर गंदा भी होगा, हमें कोई नहीं है, गंदा होगा शोहर ने भी कोई अच्छा नहीं किया। अब उसने बेचारे कि नहीं, तो आज मैं उसकी बात करूँ, उसका तो चैनल ही नहीं चल रहा, उसने क्या व्यूज़ लेने थे। हाँ, बाकी
हमें नहीं पता, अल्लाह ताला बेहतर जानता है। जो बाहर के मुल्कों से पैसा मांगा जा रहा था या कुछ आया है इनको या नहीं आया, उसमें क्या हिस्से थे, क्या परसेंट था इनका, कितने परसेंट किसको मिलना था, इस चीज़ों का पता नहीं। बाकी व्यूज़ का चक्कर या चैनलों का चक्कर, तो उसका चैनल तो फिर तबाह बर्बाद हो गया। और वो है अरसलान के पास तो फिर ये है कि हम लोग तो शुरू से इसको कह रहे थे शादवीर को कि अपना नया चैनल बनवाओ, चैनल चल जाना था एक ना एक दिन। ये है कि और फिर आसवीर ने कहा था कि मोनेटाइज चैनल है वो मैं इसको दे देता हूँ, तो वो फिर इन्होंने क्यों नहीं लिया। एक तो वो बीवी का एहसान, जी एहसान, हालांकि उसका कुछ भी नहीं है। दोनों मियाँ बीवी काम करते थे, अपने घर के बच्चे दिखाते थे, अपने घर की जो मेहनत मजदूरी या अपने घर की मर्द बाहर काम करते, औरतें घर का काम करती है, क्या मियाँ का बीवी का एहसान है। अगर शौहर जो दुनिया से लड़ के कहाँ कहाँ से पैसा कमा के ला के बीवी को देता है, उसकी हर आसाइश को पूरा करता है। सारे ज़माने की औरतें ना यूट्यूब पे हैं, ना सारे ज़माने की औरतें नौकरियाँ करती हैं, जस्ट अपने बच्चों को देखती हैं, अपने बच्चों को पालती हैं, पोसती हैं। तो उनके शोहर ने सारा कुछ करते। अगर उस शोहर का एहसान नहीं माना जाता, तो जो औरत है वो अगर घर में बैठ के वीडियो बना लेती है या कोई काम करती है, या उन औरतों को देखे जो साथ में खड़ी होकर नौकरियाँ करती हैं, मेहनत मजदूरियाँ करती हैं, फिर वो तो बंदों को खा जाए, वैसे बच्चों को भी खा जाए, बंदों को भी खा जाए। तो इस बंदे की बातें मुझे यकीन करें 100% सच्ची लगी हैं। बाकी जहाँ ये गलत है मैं इसको भी गलत कहूँगी। मेरी वीडियो इन सब तक चली जाती है कि भाई साहब वो आपकी सगी भांजी नहीं थी, वो भांजे की बीवी थी, या किसी न किसी तरीके से वो आपकी नाम महरम थी। आप लोगों को उसको पकड़ते, छितर मारते, उसको उसके घर छोड़ के आते कि बीबी तू की लेना ही है, तू केड़े रिश्ते दे नाल मुनीर ब्रो दे नाल रिश्तेदारी बनाना चाहिए, या जो भी है वो मतलब कह रहा है कि हमें इन्होंने नहीं बताया, हमें नहीं पता चला, हमें बाहर के मुल्कों से पता चला, कॉल्स आई या लोगों ने वीडियोस बना के भेजी। देखे बाहर के मुल्कों वाली बहनें मुवक्किलात तो लेके नहीं बैठी हुई, उनके पास जिन्नात तो नहीं है, उन्हें तो ये लोग खुद बताते हैं। और कितना हौसला इन लोगों का, कितना हौसला है गलत कारियाँ करना और बाहर की बहनों को बताना। पहले भी तो यही बताया गया कि आसवीर ने कहा कि मुझे बाहर के मुल्क से बहन ने किसी ने कॉल की थी कि ये उज़मा और मुनीर का चक्कर चल रहा है, तो आप उसको अवेयर करें शाहदवीर को। देखे ना, तो ये कितने धड़ल्ले की बात है कि अल्लाह ताला माफ़ करे, एक शादीशुदा औरत या एक मर्द शादीशुदा औरत के पीछे लगा और वो क्या बाहर के मुल्कों में वाली बहनों को बता रहा है। तो बहनों को चाहिए ना ऐसे लोगों की छितरौल करें, और उन्होंने बताया भी कि शादवीर को बताएं। तो अब जो इनको भी मैसेज भेज रही होंगी, मर्द थे या औरत, तो यही कह रहे होंगे ना कि ये गलत हो रहा है, आप इस चीज़ को संभालें। तो वो कह रहे हैं जी फिर हो सकता है इस भाई साहब को भी पता ना हो, वो मुनीर जो है वो अकेला ही जाके उसको छोड़ आया हो उधर दारुल उमान में, क्योंकि उसने जो इतना बड़ा कांड किया था तो किसी वकील से तो उसने मशवरा ज़रूर किया होगा, नहीं तो वो आज तक ये दोनों ये ना भुगत रहे होते तरीके, ये मुनीर ब्रो और ये उज़मा बीबी जेल की जो चक्कियाँ पीस रहे होते हैं, वहाँ इनको समझ आ रही होती कि हमारे साथ क्या हुआ है। तो बस ये है कि बाकी ये बंदा मुझे लगता है फंसा है सिर्फ भाई की सपोर्ट करने के लिए। और अब ये कह रहे हैं हमारे साथ एक और पार्टी मिल गई है, तो हम इस चीज़ को जी इस मामले को सॉल्व करना चाह रहे हैं। तो भाई साहब क्या मामला सॉल्व होगा, मुझे आप बताएं कि जो औरत अपने बंदे को भी भूल गई है, इस चीज़ को भी, इस मैटर को भी गोली मारे, बच्चों को भी भूल गई है ना, वो छोटे बच्चे याद रख रही है ना बड़े याद रख रही है, तो आप क्या समझाएंगे। आप मुझे एक बात का जवाब दें, आप भी समझदार हैं। बाकी उसने बड़ी अच्छी बातें की हैं कि हमारे चैनल नहीं चलते फिर भी हम मेहनत मजदूरी करके अपने बच्चों को पाल रहे हैं। मेरी बच्चे हैं, मैं एक घर वाला हूँ, एक फैमिली वाला हूँ, मेरी बेटी है, मैं उसको लेके आया हूँ। फिर इन्होंने इतने ड्रामे लगाए, वीडियो चढ़ाई इन्होंने पैसे के लिए, बाहर से फंडिंग लेने के लिए, या इन्होंने व्यूज़ का चक्कर है। तो देखिए इसमें शाहद का तो कुछ भी नहीं है, उसका तो चैनल ही नहीं चला, तो उसने क्या व्यूज़ लेने थे, बाकी सारी रिश्तेदारों ने लिए। और फिर यास्मीन आपी को भी धोया है उसने कि ये हमारी भांजी थी, इसने हमें इस तरह का बातें की है, तो ये भी सारा कुछ जानते हैं। देखे कहते हैं ना लोटा है ना, लोटे से जो इंसान उसको इस्तेमाल करता है ना, वो उसे छुपा होता था ना, लोटा उससे छुपा होता है। तो ये एक ही ख़ानदान के लोग हैं, एक ही रिश्तेदार है, दाद पोते हैं। वो कह रहे हैं कि जी हमारे रिश्तेदार है, इनका जो दादा है मामा वो भी हमारा भी है, वो पुतरेर है, तो सारा कुछ तो ये एक ही है। तो बस ये है कि फिर व्यूज़ का चक्कर है, बाकी फंडिंग का चक्कर भी था। आज सारा कुछ उसने खुलासा खोल के रख दिया है। तो देखे जब दारुल उमान में केस चल रहे होते हैं, अदालतों में चल रहे होते हैं ना, फिर मुझे नहीं समझ आती कि पंचायतें किस तरह बिठाई जाती हैं। जब आप लोग उधर अदालतों में के तो फिर वो कह रहा है मैंने इन्हें कहा था
अदालत में बात ना करें, हफ्ते वाले दिन ना हमें एक पंचायत रखेंगे तो इन्होंने मर गए, लुटे गए, साड़ा जनाजा उठ गया। ये मतलब जो फिर ये तो मुझे यही तासुर ये बंदा दे रहा है कि ये सारा फेक ड्रामा चला है। अब मुझे नहीं पता इस फेक ड्रामे में कौन कौन शामिल है। जिस तरह फिर आके फ़ौरन से अरसलान ने भी वीडियो लगाई कि उस गंदी औरत ने, मेरे बाप ने साफे उतार के उसके पाँव में रखे, उस्मा पी के उस्मा की उस गंदी औरत ने मेरे बाप को भी एक साइड कर दिया। जिस तरह ताहिरा ने कहा कि हाथ मार मार के वीरा रोया, तो मैं उदो दी ढाई मार मार के रोई हाँ। मतलब कि फिर इनकी फूफो ने वीडियो लगाई, फिर शमाइला ने जो बातें रह गई वो उन्होंने लगाई। मतलब पूरे ख़ानदान ने तो वो चीज़ें लगाई हैं। अगर ये बंदा कह रहा है ये सारा फेक है, झूठ है, तो फिर कौन कौन बंदा इस चीज़ में शामिल है। अब जहाँ तक मुझे समझ आ रही है कि ये फेक ड्रामा रचाया गया था। अब शायद उज़मा नहीं आ रही, उज़मा कहती मैंने नहीं आना, अब मैंने मुनीर ब्रो के साथ ही जाना है। तो अब आप इस बात को समझें, व्यूज़ के चक्कर के साथ साथ भी था हकीकत, मुझे जहाँ तक पता चल रहा है थी हकीकत इस चीज़ की, लेकिन इसको कैश करना चाहा गया। तो इन्हें भी पता चल चुका था कि वो नहीं आएगी। और आगे भी आप लोग देख लें कि फिर जिस तरह उधर जो थर्ड पार्टी है वो इनको ब्लेम कर रही है, तो ये थर्ड पार्टी ने आज सारा फिर उनको ब्लेम कर दिया। और बीच में जी हमें नहीं पता अब कौन से चौधरी आए हैं बीच में सुलह करवाने के लिए। तो चलें जी, आप कहते हैं हम भी दुआ करते हैं अल्लाह ताला उसको हिदायत दे और सच्चे दिल से वो अपने बच्चों का ख्याल करे। शौहर के साथ रहती है रहे, नहीं रहती ना रहे, कम से कम अपने बच्चों की माँ बन के रहे। क्योंकि जो औलाद है ना उसकी ज़िंदगी माँ बाप के साथ होती है जुड़ी हुई। तो देखें फिर अगर इस चीज़ को देखें तो जिनके माँ बाप मर जाते हैं, बच्चे पैदा होते हैं और उनके माँ बाप मर जाते हैं, मुश्किलात तो बहुत होती हैं, लेकिन वो भी पल जाते हैं क्योंकि पालने वाली ज़ात अल्लाह की होती है। तो जो माँ या बाप अपनी औलाद का अच्छा ही ना सोच सके तो वो क्या माँ बाप है। इधर आप देख नहीं रहे सगे बाप उठ के बेटियों के साथ क्या कुछ कर रहे हैं, सगी माएँ अपनी बेटियों के साथ क्या क्या कुछ करवा रहे हैं, आप उनको माँ बाप कहते हैं। और बाज़ बात ऐसा होता है कि गैर लोग उनकी हिफाजत कर जाते हैं। कहते हैं ना ये 5 उंगलियां ये एक जैसी नहीं होती। तो जी मुझे इस भाई साहब की बातें काफ़ी सच्ची लगी हैं। तो आप भी आगे देखें, अब हम ये नहीं है कि एक ही पार्टी के साथ खड़े रहें कि जी वो बिल्कुल सच कह रहे हैं और ये झूठ कह रहे हैं। अब वो बंदा भी कहीं ना कहीं तो वो भी अपनी इधर सच्चाई रख रहा है ना, तो क्यों इन लोगों ने इस चीज़ को, कि उसके भाई ने भी जो की है ना, हाँ उसको उसने मतलब कहना पड़ी कि मामा छुपे लफ्ज़ों में बयान किया है। ये उसने नहीं कहा कि वो नहीं लेके गया, ये उसने नहीं कहा कि वो झूठा इल्ज़ाम लगा, वो चीज़ वो छुपा गया। बाकी ये 5-6 लाख वाला उसने पूछा कि किसने मांगा ये हमें बताएं। तो नाम तो सदीक़े के लिया जा रहा था। आपने शमैला की वीडियो नहीं देखी जिसमें कहा था कि वो 6 लाख मांग रहे हैं, फिर 3 लाख पे बात आ गई। तो फिर अब वकीलों ने कहा, तो फिर वो कह रहा है जब मैंने इनको कहा कि ये बैठ के पंचायत में बात करो तो ये क्यों जाते हैं, सानू साह चढ़ गया, असी थक गए, असी इन्ना पैसा ला के आ गए। मतलब वालदेन 60-70 हज़ार रुपया लगा के गड्डियाँ करवा के उत्ते तरीका वास्ते गए ने, तो ना लाओ 60-70 हज़ार रुपया। वो नहीं आना चाहती तो ना आने दें, छोड़ दें उसको उसके हाल पे। तो मैं तो फनी बात नहीं करती क्योंकि ये एक बहुत कहते हैं ना कि इस चीज़ को हम लोग फनी वे में नहीं ले सकते। ये अकेले महबूब महबूबा की बात नहीं है, ये एक मियाँ बीवी की बात है। और आपको भी पता है कि जो शैतान घर तोड़ता है ना, शैतान का बच्चा, तो उस पर शैतान सबसे ज़्यादा राज़ी होता है क्योंकि उससे नस्लें बर्बाद होती है। और ये 5 बच्चों की ज़िंदगियाँ हैं। तो बाकी अगर वो माँ खुद उनको बर्बाद करना चाह रही है तो हम क्या कह सकते हैं। तो वो जो नया बंदा होगा ना वो कभी भी 5 बच्चों की जिम्मेदारी नहीं लेगा। और बात वही है कि कहते हैं सियाने कहते हैं हर औरत को हर गैर मर्द प्यार कर सकता है, लेकिन उसके जो बच्चे होते हैं ना, चाहे 1 हो 5 हो 2 3 हो, उनको सिर्फ उनका सगा बाप ही प्यार करता है, गैर बाप कभी नहीं करता। कोई हाँ करोड़ों में अच्छे हों, सुतेली माई या सुतेले बाप, तो वो अच्छे भी निकल आते हैं। बाकी देखिए ये खुद ही अपना मैटर फैला के बैठे हुए हैं। और फिर ये और आपने मुझे कहा जी आप इरम आपी, तो इरम आपी के मेरे से ज़्यादा व्यूज़ आते हैं। बाकी हक सच में किसी के साथ खड़े हो जाना वो एक अलग बात है। तो ना अपने घर के राज किसी को दें, तो ना कोई आके इधर बात करे। जब आप लोगों से फ़ायदा लेने के लिए इतने राज अपने घर के दे रहे होते हैं ना, फिर जब उनको ब्लेम करते हैं फिर अगले की मर्जी है। अभी भी मैं कह रही हूँ वो बहुत कुछ छुपा के बैठी हुई है। जिस तरह उसको गाली गलौज करवाई जा रही है, उस पर वीडियोज़ बनवाई जा रही हैं, बड़ा कुछ किया जा रहा है उसके ख़िलाफ़। तो अभी भी मैं तो उसको शरीफ बंदी कहूँगी जो चुप करके बैठी हुई है और आगे से वो इनको टारगेट नहीं कर रही। नहीं तो फिर पता नहीं इन लोगों ने क्या क्या उनसे पैसा लुटने के लिए
या पैसा मांगने के लिए। तो मैं तो बार बार कहती हूँ कि जब तक आप किसी के आगे दूसरे की बुराई नहीं ना करेंगे तो आपको कभी भी कोई बंदा फ़ायदा नहीं देता। कि हम मजलूम बनेंगे तो कोई फ़ायदा देगा ना, है ना, बिल्कुल ऐसी बात ऐसी है ना। बात है। बाकी जी अल्लाह ताला अपनी ज़ुबान में रखे। तो मुझे आप लोगों ने कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना कि आपको ये फिज़ान वीर वाले चैनल की जो बातें हैं जिन्होंने मुझे बताया, थैंक यू सो मच। और इस बंदे की बातें भाई साहब की आपको कैसे लगी हैं। मुझे तो इसकी बातों में बड़ा कुछ समझ आ गई है कि वो कह रहा अभी भी मेरी कोशिश है कि मैं उज़मा को समझा के भेजना हूँ। तो भाई साहब ऐसा समझा के भेजने की कोई ज़रूरत और नहीं है। ऐसी औरत को रखना ही नहीं चाहिए कि जो किसी के समझाने पे अपने घर में जाए और बच्चों को दे। हाँ जी, फिर उसको दोबारा मैं यहाँ मेरी वीडियो थोड़ी लंबी हो जाएगी। यहाँ मैं आपको कहावत ना, अगर अगली वीडियो मुझे बनानी पड़ी ना तो इसी मैटर पे, तो फिर मैं आपको एक कहावत सुनाऊंगी कि एक सच्ची बात किस तरह पे कहते हैं। तो जी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ढेर ढेर ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।